Hello student, as you can see here, today we are going to understand chapter number 4 from the diary of Anne Frank. This chapter is a part of Anne Frank's diary and here she tells us about the early days of her life. Anne Frank's diary has become famous throughout the world. The diary provides a vivid glimpse into the world of a young Jewish girl living in a Nazi-occupied Holland. Annie wrote diary while hiding from the Nazi in an Amsterdam warehouse. She was just 13 when she and her family went into hiding. I will recommend you download the complete version, complete diary from the internet and read it. It is very beautiful. One of my favorite. It is very beautiful. Commendable writing she has written in her diary. Okay, so we'll start from before you read. Anneliese Mary Anne Frank. Complete नाम था उसका Anneliese Mary Anne Frank. She was born on 12th of June 1929 and died on February March because ये confirm नहीं है when she died, February or March. 1949. She was a German and she was a Jewish girl. Jewish जैसे हम हिंदू मुस्लिम, she's a हिंदू girl या she's a Muslim girl. तो इसी तरह से वो German से belong करती थी और Jewish girl थी वो. She wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. As I told you, it was the time of German World War II, and the German was seizing the area of Netherlands. It was the time around that. So her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power. After the complete occupation on the Netherlands, Nazi became powerful and the Germany were trapped when the Nazi occupation extended to the Netherlands, as I told you. So, Jewish population के against उन्होंने persecution यानी कि restriction, उनके जो दबाव था उनके ऊपर वो बढ़ा दिया. तो जो उनकी फैमिली है 1942 में एक अनजान जगह पर आ गए. ओके, तो फिर वो 1942 में वो हिडन रूम है, हाइडिंग प्लेस है, वो आ गए इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग. जो उनके फादर है ओटो फ्रैंक, उनके ऑफिस की बिल्डिंग में. सो 2 साल के इस टाइम के बाद इस फैमिली को कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया, जहाँ पे एनी फ्रैंक एक डिजीज की वजह से मर जाती है जिसका नाम है टाइपस. ठीक है, एज यू कैन सी हियर टाइपस. कि जब उसको कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया और जहाँ पर बर्गन बेल्सन में टाइपस डिजीज की वजह से एनी फ्रैंक की मौत हो जाती है और उसकी बहन मॉर्गरेट फ्रैंक के आने के कुछ दिनों के अंदर ही. सो उसके जो फादर हैं ओटो, so her father was the only survivor of the group and he knew कि उसकी जो उनकी बेटी है वो डायरी लिखती है और वो वापस एम्स्टर्डम आते हैं ये चेक करने के लिए कि उसकी जो डायरी है वो बची है या नहीं. तो वो इस चीज से बिल्कुल वो जानते थे कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है, तो वो ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश. उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, कि वो अभी इस रिकॉर्ड को पब्लिश करवाएंगे और इस चीज को, इस डायरी को वो पब्लिश करेंगे. और वो जो डायरी थी वो ओरिजिनली डच लैंग्वेज में लिखी हुई थी और उन्होंने वो इंग्लिश अंडर द जो पब्लिश हुई थी इंग्लिश में अंडर द नेम द डायरी ऑफ यंग गर्ल. एक डायरी यंग गर्ल की उन्होंने इसको पब्लिश करवाया और सबसे पहले उनके फादर ने ये कदम उठाया. So this diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and given by her father, and she has recorded every important moment of her life. और कहाँ से कहाँ तक 12th of June 1942 से फर्स्ट एंट्री है और फाइनल एंट्री है 1st of August 1944 तक. इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल, एज आई टोल्ड यू कि इट वॉज रिटन इन ओरिजिनली इन डच लैंग्वेज और उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया गया बहुत सारी लैंग्वेज में. इट वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक and there have been many films, many television, many serials, many theatrical production based on her diaries. And Anne Frank वो बहुत जानी मानी और बहुत फेमस राइटर है जिसने हॉलोकॉस्ट विक्टिम को एक्सप्रेस किया है, बताया है उनके बारे में. ओके, शी इज राइटिंग इन अ डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. कि वो कहती है कि किस तरह से कि राइटिंग
कितना स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, अनुभव है मेरे जैसों के लिए डायरी में लिखना। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी लेटर ऑन नीदर आई नोर एनी मोर एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिंग ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल। वो उसे लगता है कि सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने कुछ कभी लिखा नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि बाद में ना मैं और ना ही कोई 13 साल की स्कूल गोइंग जो बच्ची है उसके थॉट्स में कोई इंटरेस्ट लेगा। उसे नहीं लगता था कि कोई मेरी बातों को कोई सीरियसली लेगा। एंड देन शी से ओ वेल खैर इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे राइटिंग पसंद है, मुझे लिखना पसंद है। एंड आई हैव इवन ग्रेटर नीड टू गो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और वो कहती है कि मुझे लिखने का शौक है और इससे बढ़कर मुझे अपने दिल की बहुत सी चीजों को दिल की बोझ को हटाने की आवश्यकता है। बिकॉज उसे लगता था कि उसे बहुत सारे उसके मन में थॉट्स हैं और वो एक्सप्रेस करना चाहती है और वो उन्हीं चीजों के बारे में बता रही है। Paper has more patience than people. The most wonderful line I like the whole diary. पूरी डायरी में जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी, the paper has more patience than people, and it is obviously it is truth. कि जो पेपर है वो कहती है कि कागज में लोगों से ज्यादा पेशेंस होता है। और I thought of this saying no one of those days when I was feeling a little depressed and I was sitting at home with my chain in my hand, bored and listless. तब वो कहती है कि मैंने इस जो वर्ड्स मैंने यूज किए हैं इसके बारे में उन दिनों में सोचा, कि जब मैं कुछ उदास थी, डिप्रेस थी और मैं घर पर अपनी चिन को अपने हाथ में लेके बैठी हुई थी और मैं बेचैन सी लापरवाह थी और हैरान हो रही थी कि घर पे रुकूं या कहीं बाहर चली जाऊं। ठीक है, wondering whether to stay in or go out। उसे लग रहा था कि घर में ही रुकूं या बाहर चली जाऊं क्योंकि वो उस दौर से गुजर रही थी। फाइनली stayed where I was brooding। हाँ, अब वो कहती है कि हाँ, अब मैं फाइनली मैं उस जगह पे, यानी कि हाँ मैं उस जगह पे वहां पे आई जहां मैं सोचती रही। ठीक है, ब्रूडिंग, जहां पे मैं सोचती रही। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। हाँ, पेपर में सबसे ज्यादा सब्र होता है, धैर्य होता है। And since I'm not planning to let anyone else read this stiff back notebook, grandly refer to it diary। अब वो कहती है और क्योंकि मैं इस मोटी कवर वाली कॉपी जिसे चाव से डायरी कहती हूँ या जिसे डायरी कहा जाता है उसे किसी को नहीं पढ़ने दूंगी। हाँ, अगर मुझे कोई सच्चा दोस्त मिलता है। अब वो कहती है अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, कि जब तक अगर मुझे कोई सच्चा दोस्त मिलता है, अगर कोई दोस्त मिलता है, इट प्रोबेबली वोंट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, अब वो कहती है कि अब जब तक मुझे कोई सच्चा दोस्त मिलता है तो बात है शायद जरा भी फर्क नहीं पड़ता। Now, I'm back to the point that prompted me to keep a diary in first place. I don't have a friend. अब वो कहती है अब मैं इस बात पे वापस आती हूँ जिसने पहले तो मुझे डायरी रखने के लिए इंस्पायर किया। कौन सी बात? कि I don't have a friend, कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि उसे लगता था कि मेरे दिल में बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसे मैं शेयर करना चाहती हूँ, बट शी वॉज नॉट हैविंग अ सिंगल फ्रेंड। तो तब वो कहती है कि मुझे इस चीज ने इंस्पायर किया, मुझे इस चीज ने प्रॉम्प्ट किया कि मुझे एक डायरी लिखनी चाहिए। सो लेट मी पुट इट मोर क्लियर। अब वो कहती है कि हाँ, अब मैं इस चीज को ज्यादा क्लियर कर देती हूँ, मतलब क्लियरली कहूँ तो सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि कोई यकीन नहीं करेगा एक 13 साल की बच्ची इस पूरे संसार में अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूँ। एंड शी वाज सेइंग आई एम हैविंग लविंग पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स हैं, 16 साल की मेरी बहन है, देयर आर अबाउट 13 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, 13 लोग हैं जिन्हें मैं फ्रेंड कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। नो, on the surface I seems to have everything except my one true friend। वो कहती है कि सब कुछ है मेरे पास सिवाय एक फ्रेंड के। All I think about when I am with a friend is having a good time। अब वो कहती है कि बाहरी तौर पे मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास कुछ नहीं है, बस सिर्फ एक दोस्त की। और जब मैं अपने दोस्त के साथ तो होती हूँ, यानी कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो वो मजे कर रहे होते हैं, तो बहुत कुछ सोचती हूँ। क्या? किस चीज के बारे में? कि मैं सोचती हूँ कि जब मैं अपने फ्रेंड के साथ होती हूँ तो वो एक गुड टाइम है। आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, कि मैं रोज के जीवन की सिंपल चीजों के अलावा किसी बाकी टॉपिक के बारे में बात नहीं कर पाती। ठीक है, बाकी चीजों के बारे में नहीं बात कर पाती। वी डोंट सीम्स टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स माई प्रॉब्लम।
मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और यही मेरी प्रॉब्लम है। और वो कहती है इसी चीज के बारे में, मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है मेरा कसूर हो, दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे को दिल की बात नहीं बता पाते। ठीक है, इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। और वो बताती है कि जो भी है या जो भी मामला है ऐसा ही है कि शायद दुर्भाग्य से या फिर इसके बदलने की कोई आसार है भी नहीं। ठीक है, कि I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things, कि वो कहती है कि मैं नहीं बता पाती है, and it don't seems to be able to any closer, कि यही मेरी प्रॉब्लम है। मे बी ये मेरी गलती हो सकती है कि हम एक दूसरे को मन की बात नहीं कहते, और इसी केस में that's just how things are, and unfortunately शायद ये चीजें कभी चेंज भी नहीं होंगे। This is why I have started the diary। और वो कहती है कि शायद इसीलिए मैंने डायरी लिखी, क्योंकि उसे लगता है कि मैं अपनी चीजों को या अपनी बातों को दूसरों तक नहीं बता पाती, और कोई भी मेरी बात को शायद समझे या ना समझे। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग वेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, और इस लॉन्ग वेटेड फ्रेंड की इस इमेज को अपनी इमेजिनेशन में सुधारने के लिए बताती है, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी। मुझे, अब वो कहती है कि मैं अपनी डायरी के इन पॉइंट्स को, इन फैक्ट्स को इस तरह नहीं लिखना चाहती जैसे कि लोग लिखते हैं। वो चाहती है कि ये जो डायरी है उसकी दोस्त बन जाए। ठीक है, अब वो चाहती है कि नॉर्मल जैसे लोग लिखते हैं डे टू डे लाइफ में, वो नहीं लिखना चाहती है। वो चाहती है कि वो जो डायरी है इसकी फ्रेंड बन जाए, उसकी दोस्त बन जाए। और वो नाम क्या देती है, आई एम गोइंग टू कॉल हिज फ्रेंड किटी। अब वो कहती है मैं इसका नाम क्या रखने वाली हूँ, किटी। So here are oral comprehension check. The first one, what make writing in a diary is a strange experience for any friend? The answer will be, writing in a diary is a strange experience for any friend because she has never writing anything before, and secondly, she thinks that no one will be interested in the thoughts of a 13-year-old girl except herself. So it was better to record those thoughts in her diary. The second one, why does Annie want to keep a diary? Any friend wants to keep a diary because she has no friend in whom she can confide, and secondly, she cannot discuss her day-to-day happening or day-to happening with anyone, but she would be able to record this happening in a diary. And third one, why did Annie think she could confide more in her diary than in people? So the answer will be like, any friend does not have a true friend, so she cannot confide her feeling in anymore. And she thinks that her diary is only her only true friend. So she thinks that she can confide in it better than in person. Okay. So there will be the answer of these 3 oral comprehension checks. So let's move forward. Since no one would understand a word of any stories of Kitty if I were to plunge right in. हालांकि वो कहती है क्योंकि अगर मैंने एकदम से लिखना शुरू कर दिया तो कोई भी इंसान मेरे जो मैंने किटी को कहा गया है कोई भी वर्ड को समझ ही नहीं पाएगा। सो इट वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। वो कहती है तो बेटर होगा कि मैं अपने लाइफ के बारे में बताऊं। मच आई लाइक डिसलाइक डूइंग सो, और ज्यादातर उन चीजों के बारे में जो मुझे अच्छा नहीं लगता, यानी जो मुझे अच्छी नहीं लगती करने में, उनके बारे में बताऊं। सो शी वाज टेलिंग अबाउट her father, my father, the most adorable father I have ever seen. अब वो कहती है कि मेरे फादर जो most adorable father में से एक हैं, didn't marry my mother until she was 36 and she was 25. अब वो बताते हैं कि उन्होंने तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 के नहीं हो गए और मेरी माँ 25 साल की नहीं हो गई। अब वो अपनी बहन के बारे में बताती है, माई सिस्टर मार्गरेट, एंड उनकी यानी कि सिस्टर का नाम था मार्गरेट। शी वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926 में। शी वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। मैरी जो एनी है वो उसका जन्म हुआ था 12 जून 1929, और जो उसकी बहन जो मार्गरेट है वो पहले उसका जन्म हुआ था 1926 में। I live in Frankfurt until I was 4. वो सिर्फ 4 साल की थी जब तक वो फ्रैंकफर्ट में रहे। My father emigrated to Holland 1933. अब वो कहते हैं कि वो हॉलैंड आ गए थे 1933 में, यानी कि वो 4 साल तक ही फ्रैंकफर्ट में रही थी। उसके बाद उनके जो फादर हैं 1933 में हॉलैंड आ गए। अब वो बताती है कि मेरी मदर, किसके बारे में, अपनी मदर के बारे में बताती है, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। अब वो कहती है कि वो हॉलैंड सितंबर में आ गई और मुझे और मार्गरेट को हमारी दादी के साथ रहने के लिए ऑचेन भेज दिया था। उन्होंने कहाँ पे भेज दिया,
और चेन उन्होंने भेज दिया था। अब मार्गरेट हॉलैंड दिसंबर में गई और दिसंबर में गई, जो मार्गरेट है हॉलैंड गई कब? दिसंबर में, और मैं गई फरवरी में। यानी पहले जो हॉलैंड गए थे उनके फादर, उनकी मदर गए, एंड आफ्टर दैट मार्गरेट, और उसके बाद खुद एनी। एंड शी वाज राइटिंग कि आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। अब वो कहती है कि मैंने जल्दी ही फौरन मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में उसने पढ़ाई शुरू कर दी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। मैं जब तक रुकी जब तक मैं 6 साल की नहीं होगी। एट विच द टाइम आई स्टार्टेड द फर्स्ट फॉर्म। अब वो कहती है कि और पहली बार मैं 6 साल तक जब तक नहीं होगी वहां तक, और जब मैंने पहली बार उसमें एंटर किया, यानी कि क्लास में, या कह सकते हो कि शुरुआत की, मैंने क्लास में एंटर किया। इन द 6th फॉर्म ऑफ माई टीचर। अब वो कहती है कि 6th फॉर्म में माई टीचर वॉज मिसेस कोपेरस। अब वो कहती है कि जब मैं 6th क्लास में थी तो मेरी जो टीचर थी वो कौन थी? मिसेस कोपेरस थी, जो कौन थी? हेड मिस्ट्रेस थी, ठीक है, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी। इन द 6th फॉर्म, हाँ जी, वो बताती है, okay, so at the end of the year we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. अब वो कहती है पूरा जब साल खत्म होने के बाद हम दोनों बिल्कुल आंसुओं से भरी हुई थी जब हमने एक दूसरे से एक विदाई ली, हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल हमने जब ली। अब वो इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल। अब 1941 में जो उनकी दादी थी वो बीमार हो गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माय बर्थडे पास्ड विद अ लिटिल सेलिब्रेशन। वो कहती है उनको, अब वो बीमार हो गई थी जिसकी वजह से उनको ऑपरेशन करना पड़ा, इसकी वजह से वो कहती है कि मेरा बर्थडे बिना सेलिब्रेट किए ही वो बीत गया। अब ये बताती है कि ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1929 में उनकी दादी एक्सपायर हो जाती है। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। और कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ और अभी भी उनसे प्यार करती हूँ। एंड 1949, अब वो बताती, मतलब 1942 के बारे में बताती है कि दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, द ग्रैंडमाज कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट। अब 1942 का ये जो बर्थडे है बाकी इंसान की कमी को पूरा करने के लिए मनाया गया था, और बाकी मोमबत्ती के साथ दादी की मोमबत्ती भी जलाई गई। अब वो अपने बर्थडे के बाद बताती है कि ये सबकी मोमबत्तियों के साथ, कैंडल के साथ उसकी दादी की कैंडल्स भी जलाई गई, ठीक है। द 4 of us are still doing well। जो हम 4 हैं अभी भी ठीक ठाक हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डे 20 जून 1942। और वो बताती है, और ये बात मुझे 20 जून 1942 की करंट डेट तक और सोलोमन डेडिकेशन ऑफ माय डायरी की इस तारीख तक और मेरी डायरी के इस समर्पण की ओर लेके जाती है। कहने का मतलब है कि अब वो कौन सी डेट आ गई? 1942 के तक वो डायरी यहाँ पे वो लिखती है, यानी कि ये डेट आ चुकी है। Let's see the oral comprehension. Why does Annie provide a brief sketch of her life? कि जो एनी फ्रैंक है वो अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच के बारे में पूछा गया है। तो एनी थॉट नो वन वुड बिलीव अ वर्ल्ड हैज एंटायर इन अ डायरी, ठीक है, कि एनी को ये लगता था कि नो वन वुड बिलीव अ वर्ड इन हर एंट्री इन अ डायरी, सो इफ शी डिड नॉट राइट अबाउट हर लाइफ, इसलिए वो ब्रीफ स्केच प्रोवाइड करती है। द नेक्स्ट वन, व्हाट टेल्स यू दैट Annie loved her grandmother. So Annie lived with her grandmother for 6 months when her parents went to Holland. She loved her deeply. When her grandmother died, Annie felt sad. She often thought about her, so she was very close to her grandmother. We can say like that. Okay. तो आज हम इसको इतना ही करेंगे और सेकेंड पार्ट हम इसका जो आगे वाला पोर्शन है वो सेकेंड वीडियो में लेके आएंगे। तो इसको आप समझ लीजिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो वो पूछ लीजिएगा। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।